آج میری گزارش یہ ہے کہ ایسی میلاد کا کوئی جشن مناتے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، میلاد مصطفیٰ کی یادگار قائم رہے۔ ایک میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، ہو سکے تو ایک کام کیجئے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک اگر یہ آپ عمل کریں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، بہت ہی بہترین انداز میں سید امین القادری صاحب نے بتائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ جب اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ علیہ السلام کے میلاد کا جشن خوب منائیے، جس انداز سے بھی منا سکتے ہیں منائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص جوانوں سے، کہ پوری زندگی ہم میلاد مناتے رہے، لیکن میلاد ہم نے ہمیشہ 2 طریقے سے منائی، یا تو جلوس نکالا یا تو جلسہ کیا۔ یہ تو آپ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ آج میری گزارش یہ ہے کہ ایسی میلاد کا کوئی جشن مناتے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، میلاد مصطفیٰ کی یادگار قائم رہے۔ ایک میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، ہو سکے تو ایک کام کیجئے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 1500 سالہ جشن میلاد کی یاد میں اپنے گھر کے آنگن میں یا اپنے محلے میں یا اپنی گلی میں ایک درخت لگا دیجئے۔ اس لیے کہ اگر جھنڈیاں رہے گی، گلیاں سجے گی، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے بھر کے بعد آخر وہ سجاوٹ تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گی۔ اور اگر کتنے دن تک کے لگا کر کے رکھیں گے، لائٹنگ، جھنڈیاں لگتی ہے، لائٹنگ لگتی، سب لگے گی، لیکن جب اس درخت پر لوگوں کی نظر پڑے گی تو لوگ کہیں گے یہ فلاں نے میلاد مصطفیٰ کی یاد۔ سبحان اللہ، بے شک لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ اپنی گلی کے اندر ایک درخت میلاد مصطفیٰ 1500 سالہ کی یادگار لگا دے، پہلی بات، جب تک کہ وہ درخت کے پتے اللہ کا ذکر کریں گے، اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ سایہ دار ہو گیا، اس کے سائے میں کتا بلی بھی بیٹھ جائے تو اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوئی انسان بیٹھے تو اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے پھول سے جتنے لوگوں کے مشام جہاں معطر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا پھل جو کھائے گا اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جب لاکھوں کی تعداد میں درخت لگیں گے انشاءاللہ، تو لوگ درختوں کو کاٹ کر کے ملک کی آب و ہوا کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم درخت لگا کر کے اس ملک کی آب و ہوا کو خوشگوار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک کام میں نے بتایا، باقی کے وقت ہوگا تو آگے میں عرض کروں گا۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے میلاد کے موقع پر، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایسی شان بیان فرمائی ہے جو شان اگلے اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اعتبار سے سب کو شان ملتی ہے، دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے، دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے۔ اتنی سی شان تو کسی کی بھی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کا شوہر ہے، اتنی شان تو آئی نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، بیوی آ گئی تو حاکم تو بن ہی گیا، اتنی شان تو مل ہی گئی۔ اور بڑے تو بچوں کے باپ ہو گئے، یہ بھی ایک شان ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، یہ بھی ایک شان ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ایک شان ہے۔ کوئی ایم ایل اے بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی ایم پی بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی وزیر بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی بادشاہ بن گیا اور شان بڑھ گئی، کوئی عالم بن گیا اور شان بڑھ گئی، خطیب بن گیا، ادیب بن گیا، مفتی بن گیا، پیر بن گیا، شان بڑھتی چلی گئی، مفسر بن گیا، محدث بن گیا۔ سب کی کچھ نہ کچھ شان ہے۔ لیکن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اس کے دن کسی کی کوئی شان نہیں ہے نا۔ اس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے، بلکہ اس دن بادشاہوں کی زبان نہیں کھلنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت، وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا، وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا، وہاں کسی کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہوگا، وہاں زہد بھی نہیں ہوگا تو کوئی زاہد کی حیثیت سے بھی نہیں اٹھے گا، وہاں سب صرف بندوں کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اور اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی۔ جب اللہ پوچھے گا لمن الملک، کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے کی بھی ہمت نہیں کرے گا، پھر خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج
वाहिद जो अल्लाह एक है और वो गलबे वाला है, वो कहार है, आज उसकी हुकूमत है। तो मैं आज आपके सामने मिलाद मुस्तफा का वो जो उन्वान आपने मुझे दिया है मैं बताना चाहता हूं, वो कयामत का दिन जिस दिन सबकी जबान पर नफसी नफसी है, जिस दिन फरिश्तों का हाल ये है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, जिस दिन हजरत जिब्रील जो सैयदुल मलाइका है, जो फरिश्तों के सरदार हैं, जो फरिश्तों के सैयद हैं, जो सरदार है फरिश्तों के मासूमों के सरदार है, उस दिन उनकी शान भी ये होगी कि वो भी अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे, किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। मेरे भाइयों अंदाजा करो, जब फरिश्तों का सरदार सारे फरिश्तों के साथ थर थर कांप रहा होगा तो वहां कोई अल्लाह से कलाम कर सकेगा? खुदा से कलाम करने की किसी में जुर्रत होगी? हत्ता के उस दिन अंबिया की शान भी ये होगी कि हजरत आदम भी कहेंगे नफसी नफसी, नूह कहेंगे नफसी नफसी। अल्लाह अकबर। जब अंबिया नफसी नफसी कहेंगे तो मेरी और आपकी औकात क्या होगी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब मासूमों की जबान पर नफसी नफसी होगी, कोई कलाम करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब अंदाजा करें, जब कोई कलाम करने की जुर्रत नहीं करेगा, कोई अल्लाह से बात करने की जुर्रत नहीं करेगा, सबकी जबान पे नफसी नफसी होगा, उस दिन मुस्तफा जान रहमत की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, अपने आका किसका हमने कलमा पढ़ा है, हमने किस रसूल का कलमा पढ़ा है। अरे रसूल तो सब शान बाने हैं, लेकिन उस दिन सारे रसूल भी कहेंगे नफसी नफसी, लेकिन अपने नबी की शान क्या होगी। कुरान उसका मंजर बयान करता है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबसक रब्बुका मकामम महमूदा, कि ऐ महबूब आप तहज्जुद का एहतिमाम फरमाएं। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ऐ हबीब आप तहज्जुद पढ़िए। इससे पता चला कि नबी पर तहज्जुद पढ़ना फर्ज है, सारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज है और रसूलुल्लाह पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है। अब एक बात यहां, एक नुक्ता यहां पे सामने आया, जो जितना अल्लाह का करीबी होगा उसके लिए इबादत में उतनी ज्यादती होगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम पहुंच गए तो अब हम पे नमाज नहीं है, तवज्जो, जो कहते हैं कि हम पहुंच गए तो हम पे नमाज नहीं है, तो रसूलुल्लाह से बड़ा पहुंचा हुआ कौन है? जहां जिब्रील का की सोच नहीं जाती, उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत के कदम जाते हैं। गुंचे जो चटके थे माँ औहा, दना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। अरे जहां किसी की सोच नहीं जा सकती, उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। जहां हजरत मूसा नहीं गए, उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। लेकिन जो खुदा के दीदार के लिए पहुंचता है उसमें 5 वक्त नहीं है, बल्कि उस पर 6 वक्त की है। और बताया जा रहा है जो जितना पहुंचा हुआ होगा उसको इतनी ज्यादा इबादत करनी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये कुरान, नारे रिसालत, ये कुरान कह रहा है। इसका मतलब पहुंचे हुओं की पहचान इबादत। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, के महबूब तहज्जुद पढ़िए। इससे एक तहज्जुद की फजीलत भी पता चल जाए। जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसको किसी वजीफे की और तावीज की जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जागकर इबादत करने से मुझे जो मर्तबे मिले वो किसी वजीफे से नहीं मिले, किसी नफली इबादत से नहीं मिले। बल्कि एक जुमला जहन में रखें, जो रात के आखिरी हिस्से में जागकर इबादत करना सीख जाए उसकी किस्मत कभी नहीं सो सकती। जो रात के आखिरी हिस्से में जाग के इबादत करेगा उसकी किस्मत हमेशा जगती रहेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, रोजी नहीं मिलती, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। मगर याद रखना, तहज्जुद हमारे लिए नफल है और उसी की ये नफल कबूल होती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वरना ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद गुजार बन गए तो ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने बुनियाद नहीं रखी और सीधे दीवार बनाना शुरू कर दी। तो जिसकी बुनियाद नहीं होगी उसकी दीवार कैसे तामीर
तामीर हो सकती है, बुनियाद जिसकी होगी उसी की दीवार होगी। तो फर्ज बुनियाद है और नफल उसके ऊपर की दीवारें हैं। तो लोग फर्ज को छोड़कर नफल के पीछे भागते हैं। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सोते नहीं देखेंगे, और अगर वो रात को सोया है तो रात के आखिरी हिस्से में आप उसको सोते नहीं देखेंगे। लेकिन अफसोस, मैं उस कौम को तहज्जुद की फजीलत बयान कर रहा हूं जो कौम फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। याद रखो अल्लाह के बंदो, अगर मुकद्दर जगाना है तो अल्लाह के लिए जागना सीखो। बस कुछ याद रहे ना या रहे, ये बात जरूर याद रखो, जो अल्लाह के लिए जगता है अल्लाह उसकी किस्मत को यहां भी जगा देगा, वहां भी जगा देगा। किस्मत जगाने के लिए अल्लाह के लिए जगना सीखो। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है, ऐ महबूब व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, आप रात के आखिरी हिस्से में नफिल का यानी तहज्जुद का एहतिमाम कीजिए, महबूब पे फर्ज है। और फिर फरमाते हैं, क्यों? आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, ताकि आपका रब आपको कयामत के दिन मकाम महमूद अता करे। ये मकाम महमूद क्या है? ये किसी नबी को नहीं मिलेगा, ये किसी रसूल को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आमिना के लाल को मिलेगा। अब मकाम महमूद क्या है? ये आखिरत में एक मकाम है, इसकी अलग अलग तशरीह की गई है। मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने कहा ना कि जब अजान सुनो तो अजान का जवाब दो। जो अजान सुन के अजान का जवाब देता है, अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है जो अजान सुनकर अजान का जवाब दे, अगर वो औरत है तो अल्लाह उसको 15 लाख नेकी अता फरमाता है और 15 लाख उसके गुनाहों को माफ करता है। और जो अजान सुन करके जो औरत मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो सहाबा ने कहा, हुजूर तो ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया, मर्द अगर अजान का जवाब दे तो अल्लाह उसको 30 लाख नेकी अता फरमाए, 30 लाख उसके गुनाहों को माफ करे। और जब वो मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करता है, वजबत लो शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मकाम महमूद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसू मक़ामम महमूदा वबअसू मक़ामम महमूदा वबअसू मक़ामम महमूदा। ये दुआ करने का हुजूर ने हुक्म दिया है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जितनी देर तक तुम अजान का जवाब देते हो उतनी देर तक अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम्हारे सरों पर होता है। और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। तो अजान का जवाब देने के बाद हुजूर के लिए जो मकाम महमूद की दुआ करे और फिर उसके बाद अपने लिए जो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। तो ये मकाम महमूद क्या है? नंबर 1 मकाम महमूद ये है, आका फरमाते हैं, उस दिन अल्लाह मेरे हाथों में हम्द का झंडा देगा। उस दिन अल्लाह अपने हबीब के हाथ में झंडा देगा। तवज्जो, झंडा देगा अल्लाह ताला। इसका मतलब कयामत के दिन भी झंडा है। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये झंडे क्या निकाल रखे? मैंने कहा झंडा तो कयामत के दिन भी होगा। हाँ, अलबत्ता झंडा लगाओ। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे पता चलता है कि आदमी की पार्टी कौन सी है। जिसके दरवाजे पर जिसका झंडा होगा वो पार्टी पता चलेगी। तो पता चला आपने जिस पार्टी का लगाया, पार्टियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, जबरदस्ती किसी की तशहीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारी जबानें बड़ी मुकद्दस हैं ऐसा। और जब यार का जिक्र है तो फिर किसी पार्टी का जिक्र कर, हम जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिस सियासी पार्टी का झंडा आपके सर घर के सर पे है, पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये मिलाद वाले मुस्तफा की पार्टी में है। और याद रखना, किसी की रहेगी कि खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन मिलाद वाली पार्टी रहेगी। मुस्तफा जाने रहमत का गिरोह हमेशा। तो नाज़रीन कराम, आपने पूरी वीडियो देखी और समझ गया होंगे। तो नाज़रीन, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बयान को सुन करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदक़ाए जारियत के अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।